Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. Students, online classes has been started. Students, you are very well aware to the previous situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school. But unfortunately, the unformable condition did not allow to materialize the program, and recently we adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से हम दोबारा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए हैं. Our online classes has also started. So keep watching the videos and complete your work. I hope you all are ready for ऑनलाइन क्लासेस. आप सब ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी हैं और आप सब ने न्यू बुक्स ख़रीद ली होंगी. सो आप अपनी न्यू बुक्स जिसने नहीं ली हैं वो ख़रीद ले और अपनी क्लासेस का जो है वो क्लासेस अटेंड कीजिए, ताकि आपका काम पीछे ना रहे, आप काम में पीछे ना रहें और आप साथ साथ क्लास के काम करते रहें. It's English grammar class for class 4. In this class, I will tell you about, first of all, your book, class 4, the grammar tree, basic English grammar and composition edition, second edition. It's your book. It's your new book for you. आई होप आप सब ने ये बुक ख़रीद ली होगी. इसमें से हम सबसे पहले मैं आपको बुक इंट्रोडक्शन बता दूं, थोड़ा सा बुक के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि इस बुक में क्या है. Special features of this edition is the series has been revised in the light of users' feedback, and this has necessitated the introduction of some new topics. Exercises have been extensively revised and new comprehension passages have been added at all levels. An attempt has been made to arrange the chapters as far as possible in such a manner that will similar to interrelated topics follow one another. The units have been broken down into smaller and more manageable ones. Explanation are followed by examples and exercises to ensure that fundamental concepts are understood and assimilated before a new or related topics is introduced. Care has been done to draw the attention of learners to expectations, to rules, correct usage, and common errors. Formative assessments and end of the year tests have been added to assess learners' understanding to concepts throughout the school year, inshallah. Okay, our month of August has been started, as you all know. मंथ ऑफ अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल बनाएंगे, देन स्टार्ट योर वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, make a title page in your copy
month of August. Okay. In this month of August have two units, Unit 1 and Unit 2. Our Unit 1 is compound nouns. Our Unit 1 is compound noun. कंपाउंड नाउन्स क्या है? हमारा यूनिट 1 का टॉपिक है कंपाउंड नाउन. नाउन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज द नाउन. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. यू ऑल आर वेल नो नाउन क्या होता है. अब आप वो क्लास में आ गए हैं, आप सब जानते हैं कि नाउन क्या है. नाउ वी रिवाइज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, a common noun is a general name that is given to all things, place, animals or persons of one kind. Book, continent, country, river, dog, girl, boy, city and etc. They all are common noun. मतलब किसी भी ऐसी चीज़ का नाम जो कॉमन हो सकता है, वो किसी भी शख्स का हो सकता है जिसको पढ़कर हम क्लिक नहीं कर सकते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. लाइक सिटी है, विच सिटी, हमें क्लिक नहीं किया. सिटी मीन्स हम समझ गए कि शहर है कोई, लेकिन कौन सा शहर है ये हमने नहीं क्लिक किया. लाइक अगर हम बात करते हैं कराची, तो हमारे जहन में फ़ौरन अपने शहर का नाम क्लिक करता है और अपना प्लेस हमारे जहन में आ जाता है. इसी तरह बॉय है तो कौन सा बॉय है, क्या नाम है उस बॉय का, किस बॉय के बारे में बात हो रही है, हम नहीं जज कर सकते. इसलिए ये कॉमन नाउन है. बॉय कोई भी हो सकता है, ढेरों बॉयज़ हैं, कोई भी बॉय हो सकता है. गर्ल कोई भी हो सकती है. डॉग कोई भी हो सकता है, डॉग का कोई नेम मेंशन नहीं है. रिवर कोई भी हो सकता है. और कंट्री जो है वो कोई सी भी हो सकती है. कॉन्टिनेंट कोई सा भी हो सकता है, वो कोई सी भी हो सकती है. इसलिए इनमें ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉमन है. इट्स कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम दैट इज़ गिवन टू द थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स और पर्सन ऑफ अ काइंड, वन ऑफ काइंड. ठीक है. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आप किसी भी चीज़ का नाम जो कॉमन है वो कॉमन नाउन है, उससे हमारे जहन में कुछ क्लिक नहीं करता, फ़ौरन हमें उसका आंसर नहीं आता, इसलिए वो कॉमन नाउन है. एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम गिवन टू द पर्टिकुलर थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स और पर्सन. यानी प्रॉपर जो नाउन है वो किसी भी पर्टिकुलर थिंग का, जगह का, चीज़ का, किसी भी पर्टिकुलर नेम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है. लाइक एशिया, एशिया से हमें पता लगता है कि एशिया की बात हो रही है. और एशिया कौन सी जगह है ये हम मैप में देख सकते हैं. एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ये हम वहाँ क्लियर कर सकते हैं. लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. लेकिन जस्ट हम एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें तो हम यूरोप की कंट्रीज़ देखेंगे. एशिया की बात करें तो एशिया की कंट्रीज़ को देखेंगे. लाइक कैनेडा. कैनेडा जब हम क्लिक कर लेते हैं, कनाडा से हम कनाडा फॉरेन कंट्री क्लिक कर लेते हैं कि कनाडा कंट्री की बात हो रही है. अगर हम जस्ट कंट्री की बात करें तो कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं. इस तरह नाइल है, मीरा है, सलीम है, ये नेम्स हैं. सलीम, हमें फ़ौरन सलीम, जो भी पर्सन सलीम है उसके बारे में हम फ़ौरन क्लिक कर देंगे कि उस शख्स के बारे में बात हो रही है. कराची है तो कराची, फ़ौरन हमारे सिटी के बारे में बात हो रही है, हम समझेंगे. ताजमहल है तो ताजमहल एक ही है, फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि ताजमहल के बारे में बात हो रही है. तो ये प्रॉपर है, मतलब इसके बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती. कॉमन नाउन में हमें कन्फ्यूजन रहती है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कॉमन है, कॉमन नाउन है, उसमें हमें कन्फ्यूजन रहती है. लेकिन जिसमें हम फ़ौरन क्लियर हो जाएं, पर्टिकुलर हमें थिंग मिल जाए, प्लेस मिल जाए, तो हमें फ़ौरन हम उसे क्लिक कर लेते हैं. तो ताजमहल है, पाकिस्तान है, माउंटेन है, मोनूमेंट्स हैं, कासिम फोर्ट है, एक्सेट्रा, ये सब जो है वो प्रॉपर नाउन है. इसके बारे में हम कंफ्यूज नहीं होते, हम फ़ौरन क्लिक कर जाता है कि हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो कॉमन और प्रॉपर नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन आर अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स.
collective noun are a special kind of common and proper nouns. A common or proper nouns, that is the name of collection. Common or proper noun, that is the name of collection or group of similar things or persons is known as a collection noun. अच्छा, इसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन का जो कलेक्शन है उसमें लाइक पर्सन भी हो सकता है, वो कोई प्लेस भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी उसका जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन. लाइक ग्रुप उसका जो किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव. जैसे क्राउड है, क्राउड लोगों से बना, मतलब पर्सन से बना, तो जब पर्सन से क्राउड, जब ज़्यादा लोग मौजूद हो गए तो वो क्राउड हो गया. और वो जो क्राउड है तो वो वन पर्सन तो नहीं रहा ना, वो तो क्राउड हो गया. अब जो क्राउड है वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. अगर हम उसमें से सिर्फ एक पर्सन की बात करें तो वो नाउन है. अब हम उसमें बहुत सारे पर्सन्स की बात कर रहे हैं, वो क्राउड बन गया है, तो हम उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन. वो सब मिलके जो है वो कलेक्टिव नाउन में चेंज हो गए. अब एक कमेटी है, कमेटी में भी कुछ लोग मौजूद होते हैं. अब कमेटी में अगर एक पर्सन मौजूद है तो वो तो पर्सन नाउन है, बट जब बहुत ज़्यादा पर्सन ऐड हो गए तो वो क्या हो गया? कमेटी बन गई. हर्ड जो है वो झुंड है. इसी तरह जैसे एक पिजन है तो वो नाउन है. अब पिजन का जो ग्रुप है तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया. इसी तरह जानवरों का झुंड है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जब एक हैं तो नाउन है, जब बहुत ज़्यादा मौजूद हों तो वो कलेक्टिव हो गए और वो कलेक्टिव नाउन में चेंज हो गए. अच्छा, इसी तरह हम समटाइम्स द पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स मेकिंग अप द कलेक्शन और ग्रुप आर मेंशन्ड. पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स मेकिंग अप द कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स. अब ये पर्सन जो है, पर्सन एनिमल्स जो हैं वो खुद जो है वो अपना ग्रुप बना लेते हैं. जैसे अभी आपने पढ़ा कमेटी बना लेते हैं, क्राउड बन जाता है पर्सन से. सो इसकी एग्जाम्पल आर द गोल्डन ट्रेजरी इज वेल नाउन एथोलॉजी ऑफ पोएम्स. अच्छा, द गोल्डन ट्रेजरी, जो गोल्डन ट्रेजरी है वो क्या है? पोएम्स, गुलदस्ता है पोएम का. तो गुलदस्ता क्या है? फ्लावर्स का जो एक फ्लावर जो है वो नाउन हो गया, लेकिन जब वो गुलदस्ता बन गया, बहुत ज़्यादा फ्लावर उसमें कलेक्ट हो गए तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. इसी तरह मदर हैज़ लॉस्ट हर बंच ऑफ की. बंच जो है वो क्या है? गुच्छा. एक की थी तो वो नाउन था, एक चीज़ थी नाउन. जब बहुत ज़्यादा चाबियाँ जमा हो गई तो वो गुच्छा बन गया और वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. इस तरह कोई भी चीज़ किसी भी तरह जब वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होती है तो वो कलेक्टिव हो जाती है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है. कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. अच्छा, हमारा टॉपिक है कंपाउंड नाउन. जब तक आप नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन इसको क्लियर नहीं करते आपको कंपाउंड नाउन समझ नहीं आएगा. इसलिए मैंने इस वीडियो में सबसे पहले आपको इन तीनों चीज़ों को क्लियर किया है, कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन. अच्छा, इन दिस वीडियो have exercise on the page number 2. Pick out the proper and common nouns from the following sentences and state which of the common noun are collective. अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है इस यूनिट में कि आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन अलग करना है और उसमें से बताना है कि इसमें कौन सा जो नाउन है वो कॉमन से भी, कलेक्टिव से भी रिलेट करता है. ठीक है, ये एक्सरसाइज पेज नंबर 2 पर मौजूद है. लेट्स सी. एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन योर कॉपी ऑफ दिस एक्सरसाइज. आपने ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में मेंशन करनी है, कॉपी में लिखना है इन अ वेरी गुड राइटिंग. First of all, make a tidy title page, month of August. Then make a title page of our new chapter, compound noun. Then do the exercise. This exercise, okay?
सबसे पहले आपने मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल बनाया, फिर यूनिट 1 कंपाउंड नाउन लिखा, टाइटल बनाया, देन आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके दोनों टाइटल पेजेस रेडी होने चाहिए। फिर आप एक्सरसाइज की हेडिंग देंगे और क्वेश्चन हेडिंग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखेंगे। पिक आउट द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट विच ऑफ द कॉमन नाउन्स आर कलेक्टेड। ओके, ये आप पूरा क्वेश्चन मेंशन करेंगे। देन वी सिलेक्ट ओनली 5 सेंटेंसेस। हम सिर्फ 5 सेंटेंसेस कॉपी में राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ 5 सेंटेंसेस जो मैं अभी आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ, आपने सिर्फ वही अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, फर्स्ट वन इज a herd of cows are grazing in the field. A herd of cows are grazing in the field. अच्छा, अब इसमें herd क्या है? झुंड हो गया। काउस का जो झुंड है या काउस जो बहुत सारे तादाद में मौजूद हैं वो क्या है? हेयर्ड। तो ये क्या हुआ? और काउस क्या है इसमें, और फील्ड क्या है? इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोगों ने अपनी कॉपी में मेंशन करना है। हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर लिखेंगे। इसमें हेयर जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, और कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव है ना, झुंड मौजूद है उनका, तो वो कलेक्टिव हो गया। काउस और फील्ड जो है, काउस भी कॉमन है, कौन सी काउ कौन सी फील्ड की बात हो रही है, तो ये कॉमन नाउन है। हेयर जो है वो कॉमन नाउन है बट कलेक्टिव नाउन है। काउस एंड फील्ड जो है वो कॉमन नाउन है। ओके, इन नेक्स्ट सेंटेंस, there was a pile of books on the table. There was a pile of books on the table. अब pile क्या है? pile, yes, books का जो pile है, books का जो मजमुआ है वो क्या है? pile. अब ये कलेक्टिव हो गया, books and tables. इसमें 3 चीज़ें नाउन है, तो हमने pile पहले सबसे किया। pile इट्स कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव, कलेक्टिव कॉमन कलेक्टिव नाउन है, और books और table जो है वो कॉमन नाउन है। पाइल जो है वो कॉमन नाउन है बट कलेक्टिव है। बुक और टेबल इट्स कॉमन नाउन। नाउ थर्ड सेंटेंस इज ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड फूड टू सर्वाइव। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, इसमें क्रिएचर्स और फूड है नाउन, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएचर्स और फूड दोनों ही कॉमन नाउन है। क्रिएचर्स भी और फूड भी common noun है। And now the fourth one, the magician turned a bunch of keys into a pigeon. The magician turned a bunch of keys into a pigeon. A magician is noun. bunch क्या है? bunch of key, bunch मतलब yes, bunch है, keys एक की, तो एक की थी, अब bunch of key है तो गुच्छा है, तो ये बंच ज़्यादा तादाद में हो गया इनटू अ पिजन। इसमें हमने सेलेक्ट किया मैजिशियन इज अ कॉमन, मैजिशियन कॉमन नाउन है, बंच कॉमन बट कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। और कीज जो है वो, कीज और पिजन जो है वो कॉमन नाउन है। मैजिशियन भी कॉमन नाउन है, बंच भी कॉमन नाउन है बट कलेक्टिव है। कीज, बंच ऑफ कीज और पिजन जो है कॉमन नाउन है। द मज़ार कायद इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर पाकिस्तानीज। द मज़ार कायद इज़ अ स्पेशल प्लेस ऑफ पाकिस्तानीज। मज़ार कायद, इसमें मज़ार कायद जो है वो प्रॉपर नाउन है। मज़ार कायद जहन में आते ही हम फौरन क्लिक कर लेते हैं कि कायद आज़म के मज़ार की बात हो रही है, इसलिए ये प्रॉपर है। और हम जब पाकिस्तानीज की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर है, पाकिस्तानी भी प्रॉपर है। अच्छा, हमने फ़ौरन क्लिक कर लिया कायद आज़म, तो इसलिए मज़ार कायद ये प्रॉपर हो गया। और पाकिस्तानी से हमें पता करते हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो वो भी प्रॉपर नाउन है। अच्छा स्टूडेंट्स, दिस वीडियो दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू। ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपने कॉपी में राइट डाउन करनी है इन अ वेरी गुड राइटिंग। ब्लू कलर यूज़ कीजिएगा, मार्जिन ड्रॉ कीजिएगा, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़, स्टे होम, स्टे सेफ। आप सबने अपनी वीडियोस जो है वो प्रॉपर वॉच करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Stay home, stay safe. Allah Hafiz.